Good evening, sir. Good evening, Vivek. Good Good evening, evening, sir. sir. Good evening, good evening. Good evening to all. रेखा, राजरेखा, सब लोग ज्वाइन कर लिया आप लोग ना? Yes, sir. Sir, यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज तो अपना टॉपिक है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। yes, sir. तो ठीक है, रेखा, राजरेखा कुछ बोलना शुरू करोगी क्या? वेलकम टू ऑल, Yes, sir. प्लीज। तो स्टार्ट करो आप लोग, है ना? जीडी है, जस्ट यू स्टार्ट, आई विल लिसन यू ऑल। हु विल स्टार्ट फर्स्ट? Sir, Okay, Rekha, welcome. You start your topic. thank you, sir. Good, well. Good evening to all of you. Today's topic is National Civil Services Day. Civil services means the body of government officials who are employed in civil occupations that are neither political nor judicial. Every year, 21st April is celebrated as a Civil Services Day by the Government of India. It is celebrated as an occasion for the civil servants to rededicate themselves to the causes of citizens and renew their commitment to public services and excellence in work. Civil services word dates back to the British time when British East India Company civilian staffs were involved in administrative jobs and were known as public servants. Its foundation has been laid by Warren Hastings, and later more reforms were done by Charles Cornwallis, and so he was known as the father of civil services in India. Before 1854, civil servants were nominated by directors of East India Company. In 1855, civil services commissions conducted first competitive exams. In 1864, Satyendranath Tagore, who is the brother of Ravindranath Tagore, became the first Indian to clear the exam held in London. Indian Civil Services exam started to be held in Indian from 1922. The date is chosen to commemorate the day when the first Home Minister of Independent India, Sardar Vallabhbhai Patel, addressed the probationers of Administrative Services officers in 1947 at Metcalfe House, Delhi. He referred to civil servants as the steel frame of India. Civil servants who are working in different departments or at various levels of the government act as the supporting pillars of the administrative system of the country. The first function of Civil Services Day was held in Vigyan Bhavan, New Delhi in 2006. On this day, the Prime Minister's Award for Excellence in Public Administrators are presented to district implementing units for implementation of priority program and innovation categories. This function is organized by DARPG, means Department of the Administrative Active Reforms and Public Grievances, and Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions. This day is set aside to recognize and inspire government workers. The administration also recognizes the veterans' accomplishments on this day by giving them medals in recognition of their services. Prime Minister of India bestows awards for excellence on this day to honor the nation's civil servants for their significant contributions to public services. So the main objectives are to first the motive and appreciate the workers and efforts of civil services officers. And second is central government uses this opportunity
to evaluate the workers of various departments under the civil services. And the third is the central government facilitates and provides awards to the best working individuals and groups. Every year, lakhs of candidates apply for the Indian services exams for almost 1,000 posts. But we cannot ignore that civil services is the pillar on which the government runs policies and programs for the country. The contribution of civil servants to society and the nation as a whole cannot be expressed in words. The civil services of exams include IAS, IFS, IPS, and other central government Group A and Group B services in the country. Therefore, 21st April is celebrated as the Civil Services Day to encourage civil servants for their immense contribution to the nation. Thank you, sir. Thank you, Rekha. You have explained well explained the Civil Services Day, starting from its inception of civil services. Also, Thank you, sir. the reason why we are celebrating the Civil Services Day. Thank you. Yes, sir. Rajrekha, any other one? Rajrekha, Yes, sir. now your time. सर वैसे तो रेखा ने सारी चीजें कवर ही कर दी सब है बोल कि दिए जैसे जी। हाँ वैसे हाँ, सारी बोलो। चीजें कवर ही कर दिया है उन्होंने। बस थोड़ा सा मतलब ऐड करना चाहूंगी इसमें कि जैसे कि अभी जो 21 अप्रैल को सिविल सेवा डे मतलब मनाया गया है, ये वर्तमान में 16वां सिविल सेवा दिवस था। तो उसी के आधार पर जो कुछ विशेषताएं और उसका उद्देश्य था, और जैसे इस बार की जो थीम थी सिविल सेवा दिवस की, वो विकसित भारत और उसके अनुसार नागरिकों को जो है तो सशक्त बनाना था और अंतिम वहां तक मतलब जो पहुंचाना था। और इसके जो उद्देश्य थे यानी सिविल सेवकों के जो क्षमता निर्माण संबंधी कुछ प्रयास और उनके उद्देश्य और विशेषताएं। तो फर्स्ट पॉइंट में जो तो वर्ष 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन जो था उसका कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम को स्वीकृति दी थी। उसके अनुसार पहला जो था तो भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक और विचारशील और नवाचारी क्रियाशील प्रौद्योगिकी समर्थ बनाते हुए भविष्य के लिए तैयार करना। सेकंड, इस कार्यक्रम के माध्यम से विशिष्ट भूमिका दक्षताओं से युक्त सिविल सेवक को उच्चतम गुणवत्ता मानक वाली प्रभावकारी सेवा में सुनिश्चित करने में समर्थ बनाना। थर्ड, कार्य संस्कृति में परिवर्तन को व्यवस्थित रूप से जोड़कर सार्वजनिक संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करना और सिविल सेवा क्षमता के निर्माण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाकर सिविल सेवा में कुछ बड़ा बदलाव करना। और जो इसकी विशेषताएं थी तो इस कार्यक्रम को जो है तो एक सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण यानी आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके कार्यान्वित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम की कुछ विशेषता जैसे पहला है नियम आधारित यानी मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंध में परिवर्तन को सहयोग प्रदान करना। सेकंड, शिक्षण सामग्री संस्थानों तथा कार्मिकों सहित साझा प्रशिक्षण को परतंत्र का निर्माण करना। थर्ड, सिविल सेवा से संबंधित सभी पद की भूमिकाओं को गतिविधियों को तथा दक्षता के ढांचे संबंधी दृष्टिकोण के साथ प्रत्येक सरकारी निकाय को चिन्हित करके FREC के विषय वस्तु का सृजन करना। और जैसे आई गार्ड कर्मियों जो प्लेटफॉर्म है वह भारत में 2 करोड़ से भी अधिक कार्मिकों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए और व्यापक संरचना सुलभ कराया जाएगा। सेकंड, इस प्लेटफॉर्म के तहत एक आकर्षक एवं विश्व स्तरीय बाजार के रूप में विकसित होने की उम्मीद है, जहां सावधानी पूर्वक व्यवस्थित और पुनर्रचित डिजिटल ई-लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जाएंगी। ओके सर, थैंक यू। ऑलरेडी रेखा ने सारी चीजें अभी कर दी थी। थैंक यू राजरेखा। रेखा और राजरेखा आप दोनों ने मिलकर कंप्लीट बताया।
कि सिविल सेवा डे, सिविल सर्विसेज का क्या वैल्यू है, सिविल सर्विसेज क्यों, और सिविल सर्वेंट इंपॉर्टेंट है, और सिविल सर्वेंट को करने के लिए, थोड़ा उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी वर्किंग को जानने के लिए हम लोग सिविल सर्विसेज डे मनाते हैं इसको। तो अब इसके अलावा रेखा और राजरेखा, आप दोनों लोगों ने बोला, और कोई बोलेगा? हमें, मुझे लगता है नीतू और ज्योति, आप दोनों लोग भी अपनी आइडिया कुछ बताओ, कुछ बोलना है, कौन बोलेगा? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग आप। गुड इवनिंग। तो जैसे कि आज का मैं स्टार्ट करूं? हाँ मैं स्टार्ट करूं? हाँ, बोलो। नीतू बोल रही हो आप? अच्छा भी Yes, अपना sir. माइक म्यूट कर दीजिए। कौन? माय नेम इज नीतू कुशवाहा। तो आज हमारा जो जेडी का टॉपिक था वो था सिविल सेवा दिवस। भारत में हर साल 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का जो सेलिब्रेशन है वो हर साल 21 अप्रैल को होता है। देश के विकास में जो हमारे सिविल सेवक होते हैं इस दिन उनके योगदान को याद किया जाता है, और साथ ही साथ जो हमारे सिविल सेवक हैं उनकी कड़ी मेहनत और लोगों के प्रति सेवा और समर्पण के लिए उन्हें जाना जाता है। यदि हम बात करें कि जो सिविल सेवक हैं ये क्या होते हैं, इनका क्या तात्पर्य है, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि अधिकारियों का वह समूह जो सरकारी कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं और संचालन करते हैं, साथ ही साथ जो भी हमारी सरकार जो भी योजनाएं बनाती है उनका पालन करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। इनका जो चयन होता है, हमारे जो सिविल सर्विसेज होते हैं, जो सिविल सेवक होते हैं, इनका जो चयन होता है ये उनकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। ये नीतियों के माध्यम से जो भी नई नई नियम्स आते हैं या फिर पॉलिसीज आती हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, और एक तरह से कह सकते हैं कि नीतियों के माध्यम से ये लोगों की सेवा करते हैं। यदि हम बात करें कि भारत में सिविल सेवा का ओरिजिन क्या है, जनक कौन है, तो जैसा कि ब्रिटिश राज्य के दौरान जो हमारे वारेन हेस्टिंग थे उन्होंने सिविल सेवा की नींव रखी थी भारत में, और चार्ल्स कॉर्नवालिस ने इसको सुधार किया, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया, और इस वजह से जो हमारे चार्ल्स कॉर्नवालिस हैं इनको ही भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। यदि हम थीम की बात करें तो 2023 में जो हमारा थीम था इस बार का सिविल सेवा दिवस का वो था विकसित भारत। इसी के साथ यदि हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो हर साल 21 अप्रैल 2000 मतलब इसकी जो ओरिजिन हुई थी, शुरुआत हुई थी, वो 21 अप्रैल 2006 में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस पहली बार सेलिब्रेट हुआ था। यह सिविल सेवकों के नागरिकों के हितों के लिए खुद को समर्पण, मतलब लोगों के हित के लिए जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो खुद को समर्पण कर देते हैं, लोगों का जो भी पॉलिसी सरकार की होती है लोगों तक पहुंचाते हैं, उनका हेल्प करते हैं, बेहतरीन कार्य के लिए उनको इस दिन सम्मानित भी किया जाता है। और जो भी हमारे सिविल कर्मचारी होते हैं वो उस दिन एक पास इकट्ठा होते हैं और साथ ही साथ हमारे देश के विकास में क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं उसके बारे में भी जानते हैं, और जिन्होंने देश के विकास में बहुत अच्छा योगदान दिया होता है, कुछ नया किया होता है, उन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है, उन्हें सम्मान भी दिया जाता है। इस दिन भारत के पहले गृह मंत्री जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उनकी याद में इसी दिन को चुना गया है सिविल सेवा डे को सेलिब्रेट करने के लिए। 1947 में मेटकाफ हाउस दिल्ली में जो प्रशासनिक सेवा अधिकारी के परिवीक्षार्थी थे उनको संबोधित करने के लिए जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने सिविल सर्वेंट को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। यदि हम बात करें कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, यदि हम इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था, और ये हमारे भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। बारडोली की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी 1928 ईस्वी में, और साथ ही साथ जैसा कि मैंने इन्हें बताया कि इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता था। ये सिविल सेवकों के संरक्षक संघ के रूप में भी जाने जाते थे। इसी के साथ यदि मैं बात करूं कि भारतीय संविधान में इससे जुड़े क्या क्या प्रावधान है हमारे सिविल सेवा दिवस से या फिर सिविल सर्वेंट से जुड़े क्या क्या प्रावधान है, तो जो हमारी भारतीय संविधान है इसमें संघ और राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवा का निर्माण किया गया है। इसमें ये जो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम होता है इसकी जो शुरुआत हुई थी 1951 ईस्वी में हुई थी,
ये केंद्र सरकार को एक तरह से कह सकते हैं शक्ति प्रदान करता है, ताकि जो भी हमारी केंद्र सरकार है, जो भी सिविल सर्विसेज है, उनका जैसे सिलेक्शन किस प्रकार से होना है, भर्ती प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, विनिमय क्या होनी चाहिए, इनके बारे में ये बताते हैं। साथ ही साथ यदि बात करें तो इसमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ये तीनों जो वैकेंसीज होती हैं इसके अंदर आती है। इनके भर्ती से संबंधित जो भी नियम होते हैं, कैसा एग्जाम पेपर रहेगा, क्या क्या चयन प्रक्रिया होनी चाहिए, कैसे इनका सिलेक्शन होगा, क्या पैटर्न रहेगा, ये सब कुछ ये डिसाइड करते हैं। यदि इनमें मैं भर्ती की बात करूँ तो दो प्रकार से होती है। एक होती है सीधी भर्ती, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से सीधी वैकेंसीज आती है। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी हमारे पर्सन होते हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और उसको पास करने के बाद से उनका जो सिलेक्शन होता है। और दूसरा होता है, एक तरह से कह सकते हैं, प्रमोशन। जो भी हमारे सिविल कर्मचारी जो रहते हैं वो दूसरे पद पे रहते हैं, धीरे धीरे उनके अच्छे कार्यों से उनका प्रमोशन हो जाता है और वो इस पद को प्राप्त कर लेते हैं। जो हमारा अनुच्छेद है, भारतीय अनुच्छेद की यदि मैं बात करूं तो अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक हमारे जो सिविल सेवक हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। 315, जो अनुच्छेद 315 है, इसमें बताया गया है कि जो हमारे लोक सेवा आयोग है इनके बारे में क्या कैसे है, ये सब कुछ बताया गया है। 316 में इनके नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि कैसे इनकी नियुक्ति करनी है, क्या है। 17 में इनके निलंबन के बारे में बताया गया है कि कैसे इनको हटाना है या फिर निलंबित करना है, क्या 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 प्रोसेस है निलंबन की या फिर क्या है। फिर 18 में बताया गया है कि सेवा की शर्तों के बारे में बताया गया है कि जो भी इनको सेवा सरकार के द्वारा दी जाती है, जो भी हमारे ये जो पर्सन होते हैं, सिविल सेवक होते हैं, इनको सरकार के द्वारा जो जो भी कह सकते हैं कि सेवा दी जाती है, उनकी शर्तों के बारे में कि क्या क्या शर्तें हैं उस सेवा के बारे में, इसका व्याख्या किया गया है। 319 में पद धारण करने पर क्या कब रोक लगाया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। साथ ही साथ 320 में जो हमारे लोक सेवा आयोग के अधिकारी होते हैं उनके क्या क्या कार्य होते हैं, कैसे उनके लोगों की सेवा करनी होती है, उनके क्या क्या वर्क होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। 322 में आयोग पे कितना व्यय करना है, कैसे क्या है, इसके बारे में। और 323 में आयोग की रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। तो ये थे हमारे भारतीय अनुच्छेद में जो इनके सिविल सेवक है इनके बारे में कुछ बताया गया है। थैंक यू सर। थैंक यू नीतू, थैंक यू। सिविल सर्विसेज के बारे में डिटेल आपने बताया, डिफरेंट सर्विसेज जो है उनके बारे में भी आपने बताया, और इस तरह से आ, रेखा ने भी जो बताया और राजरेखा ने उसको आपने कंप्लीट किया कि कैसे कैसे सिविल सर्विसेज के क्या काम है, सिविल सर्विसेज का चयन कैसे होता है, और सिविल सर्विसेज कैसे अपने यहाँ काम करते हैं। तो अब इसको और कोई बोलेगा इसके अलावा? रेखा और कोई है क्या? अनामिका है और निधि है। सर भी लग सर का आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ है, कोई एक स्टार्ट कर दो, नाम का या फिर नीतू, कोई भी। अनामिका आप हैं? हाँ यस रेखा, और कोई है क्या बोलने के लिए? वो सर अनामिका है, अनामिका आपको बोलना है। हाँ अनामिका, और अगर निधि अनामिका। निधि कोई है? जी सर। स्टार्ट करिए। तो जैसा कि प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का आयोजन किया जाता है। यह देश के विभिन्न सार्वजनिक विभागों में लगे सभी अधिकारियों की सराहना के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जो भारत की प्रशासनिक मशीनरी को चलाने के लिए अथक प्रयास करते हैं। यह दिन विभिन्न विभागों में काम कर रहे सिविल सेवकों के लिए सबसे ऊपर देश के नागरिकों की सेवा करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। भारत में प्रथम सिविल सेवा दिवस का आयोजन 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन में आयोजित किया गया था। 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकॉफ हाउस में स्वतंत्र भारत में सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित किया था। उन्होंने अपने प्रेरक भाषण में सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। इसी दिन राष्ट्रीय राजधानी में सिविल सेवकों की उत्कृष्टता के लिए उन्हें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है।
ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत के बाद 1886 ईस्वी में CSS का नाम बदलकर इंपीरियल सिविल सर्विस कर दिया गया तथा यह ब्रिटिश के क्राउन के अधीन था। बाद में उसी वर्ष एचिसन आयोग द्वारा यह घोषणा की गई कि भारतीयों को भी सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इंपीरियल सिविल सर्विस का नाम बदलकर भारतीय सिविल सेवा का नाम दिया गया था। भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन वर्ष 1922 में किया गया था। 1 अक्टूबर 1926 को सर रासवारकर की अध्यक्षता में भारत के लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1924 में अखिल भारतीय सेवाओं का नाम बदलकर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कर दिया गया था। वर्ष 1939 के बाद यूरोपीय लोगों की उपलब्धता कम हो गई, इसलिए सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई। वर्ष 1947 के बाद भारतीय सिविल सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS बन गई। भारत में IAS अधिकारी बनने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस का आयोजन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया जा रहा था। इस आयोजन के दौरान 4 निहित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। 4 चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों को हर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ जल को बढ़ावा देना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वस्थ भारत को बढ़ावा, समग्र शिक्षा के माध्यम से एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से समग्र विकास संतृप्ति दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान देने के साथ समग्र प्रकृति में किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। उपरोक्त 4 चिन्हित कार्यक्रमों के लिए 8 पुरस्कार दिए जाएंगे, जबकि नवाचारों के लिए 7 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। ये 2023 में किया जाने वाला था। जी सर, मैंने बोल दिया सर। थैंक यू अनामिका, थैंक यू। तो सिविल सर्विसेज डे के बारे में आप सब लोगों ने बोला, जी सर, बाय वन सब लोगों ने बताया कि सिविल सर्विसेज क्या है। और कुछ बोलना है अनामिका आपको? सर मुझे बोलना नहीं है, कुछ पूछना है। ओके। अगर किसी को बोलना है तो अभी बोल दे, जिस फिर किसी मैं को कुछ अंत पूछना में हो पूछ बोलिए। लूंगी। सर ये बोल रही थी अभी किसी को बोलना ओके। हो तो बोल दे, फिर मैं अंत में पूछ अगर लूंगी। ठीक है, ठीक है। कि तो रेखा ने, राजरेखा ने, नीतू ने, आप सब लोगों ने सिविल सर्विसेज डे के ऊपर अपना ग्रुप डिस्कशन में अपनी अपनी बातें बताई और डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया। अनामिका ने भी बताया, अनामिका ने भी एक्सप्लेन कर दिया। अब जिसके कोई क्वेरी के क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन बाद में पूछ सकते हैं, अनामिका भी पूछेगी। अभी किसी और को कुछ बोलना है क्या? कोई कुछ बोलना चाहता है? निधि नेम से कोई ऐड है? अगर कोई बोलना चाहता है, नहीं तो फिर मैं आगे बताऊं। हाँ यस सर। ठीक है, अगर किसी को कुछ बोलना होगा तो बाद में बोलेंगे। कोई बोलना है किसी को? ऑलमोस्ट अनामिका सभी तुम ने। अपना क्वेश्चन करो, तुम्हारा क्या सर क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन हो गया ऐसे ही, फिर मैं आप बोलूंगा। हाँ पहले जी समझा बोलो। दीजिए, पहले समझा दीजिए, फिर मैं पूछ लूंगी। नहीं कुछ क्वेश्चन कुछ पूछना। हाँ सर ऐसे ही ओके सिविल सेवा से ओके रिलेटेड। ठीक है। जी सर। तो आप लोग तो देखो, आज हम लोगों ने सिविल सर्विसेज डे के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया। ये सिविल सर्विसेज डे क्या है इसके बारे में हम सब लोग जान रहे हैं। 21 अप्रैल को ईच ईयर, प्रत्येक वर्ष 2021 अप्रैल को हम लोगों ने सिविल सर्विसेज डे हम लोग मनाते हैं, सरकार मनाती है। केंद्र सरकार में माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब भी आते हैं और जो पूरे देश से जितने हमारे सिविल सर्विसेज के ऑफिसर हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए ये डे सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। आप देखो सिविल सर्विसेज डे में जो सिविल सर्वेंट हैं उनको एक थैंक्स दिया जाता है, क्योंकि आप देखो सिविल सर्विसेज के ऊपर, सिविल सर्वेंट के ऊपर बहुत बड़ा रोल होता है। जैसा आप सब लोगों ने बोला है
कि हमारे जो पहले होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बताया था कि सिविल सर्विसेज के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो सिविल सर्वेंट हैं, वो स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। आप लोगों ने सुना ना, पढ़ा है उनको, स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं। Yes, ये जो जी सिविल सर। सर्वेंट्स होते हैं इनको, yes, sir. अब ये आप सोचो, ये स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया क्या है। स्टील फ्रेम का मतलब कि जो पूरे कंट्री को होल्ड करने के लिए, पूरे कंट्री को नीचे से लेकर ऊपर तक जो पूरा जो चक्र चलता है, पूरा जो सिस्टम है, उसको बढ़िया तरीके से रन करने की पूरी जिम्मेवारी इन सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के ऊपर होती है। इनको दिन रात ये 24 आवर्स हमेशा डिवोटेड रहते हैं। आपको एक बात मैं बताऊं कि जो ये ऑफिसर होते हैं, जनरली और सारे लोगों का तो ऑफिस बंद होता है, कि आप देखो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, मॉर्निंग में 9 बजे खुलेगा, 10 बजे खुलेगा, शाम को 6 बजे बंद हो जाएगा, घर चले जाएंगे। स्कूल हो या हॉस्पिटल हो, कोई भी ऑफिस होता है जनरली बंद होता है, सुबह सुबह खुलता है, शाम को बंद हो जाता है। मालूम है आप लोगों को ना, छुट्टी हो गई, आप घर चले गए, फिर नेक्स्ट डे सुबह आप आएंगे, जब ऑफिस खुलेगा तो आप अपना काम करेंगे। ऐसा प्रायः होता है ना। लेकिन यस सर। लेकिन ये जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी होती है, इनका ऑफिस जनरली ऑफिस आपको बंद लगता है कि आज कलेक्ट्रेट बंद है, आज ये ऑफिस बंद है, मॉर्निंग में खुला और शाम को बंद हुआ, संडे को बंद हुआ, तो ऑफिस बंद होता है। लेकिन इन अधिकारी लोगों की ड्यूटियां बंद नहीं होती हैं, वो 24 आवर्स ड्यूटी पे होते हैं। किसी भी समय, किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत होने पे वो अधिकारी अपने काम के प्रति तत्पर होते हैं और तुरंत चल देते हैं। आप देखो, कई बार इमरजेंसी में, कभी रात में, कभी दिन में, कभी संडे को, हर समय इनको अपनी सेवा में तत्परता जानी पड़ती है और ये तत्परता पूर्वक काम करते हैं। तो इसलिए इनकी ड्यूटी 24 आवर्स मानी जाती है। तो और ये हमेशा काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसीलिए इनको ये माना गया, सिविल सर्वेंट्स को कहते हैं कि पूरे देश की जो गाड़ी चल रही है, वो सिविल सर्वेंट्स के हिसाब से चल रही है। अब अगर आप एक तरह से देखो, आप सारे लोग यूपीएससी की तैयारी करते हो, पीएससी की तैयारी करते हो, स्टेट में भी सिविल सर्वेंट होते हैं जो पीसीएस ऑफिसर्स बनते हैं, सेंट्रल में सर्विस ऑफिसर होते हैं जो आईएएस से बनते हैं। अब इनकी क्या होता है, इनकी जिम्मेवारियां क्या होती है कि जब ये नए ऑफिसर के रूप में पोस्टेड होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से काम शुरू होता है, तहसील लेवल से काम शुरू होता है, वहां पे एसडीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से काम शुरू होता है। तो वहां पे जब वो रहते हैं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के काम को पूरा का पूरा होल्ड करते हैं और डे नाइट लग के पूरे डिस्ट्रिक्ट के काम को ठीक तरीके से चलाना, सारी व्यवस्थाएं को देखना, ये वो काम करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से एक एक करके जितने ऑल इंडिया में डिस्ट्रिक्ट हैं, मोर देन 700, सारे डिस्ट्रिक्ट के कामों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के थ्रू हम लोग चलाते हैं। तो जो पूरे देश का जो सिस्टम है, वो दिल्ली से लेके, लखनऊ से लेके, डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जगह ये चलता रहता है। और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर फिर कमिश्नरीज होती है। किसी भी काम को करने के लिए स्टेट कैपिटल है, स्टेट कैपिटल से जो काम होता है, स्टेट कैपिटल जैसे जैसे ये ऑफिसर, इनके जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं वो कमिश्नरी लेवल पे, फिर स्टेट के कैपिटल लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट के, फिर हमारे दिल्ली में कैपिटल में सचिवालय हो गया। तो टोटल विभागीय कार्यवाही डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके सेंट्रल लेवल तक सारा का सारा इन अधिकारी लोगों के हाथों में रहता है और ये अधिकारी उनको क्रियान्वित करते हैं। किसी भी एक डिपार्टमेंट के, किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट के काम को अगर आप देखोगे बारीकी से, तो आपको समझ में आएगा कि कितने मेहनत का काम है। एक डिस्ट्रिक्ट को आप देखो, किसी पर्सन को अपना घर चलाना कितना मुश्किल काम होता है। अगर आपको अपना घर चलाना हो, आपको अपना गांव चलाना हो, आपको अपना स्कूल चलाना हो, तो उसमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो उतना करने के लिए जो काम करना पड़ता है, तो आप सोचो एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। एक यंग ऑफिसर जो आता है, जो एक डिस्ट्रिक्ट को चलाता है, उस डिस्ट्रिक्ट को चलाने के लिए उसको दिन रात काम करना पड़ता है और उसको अपना सब कुछ छोड़ के
हर समय तैयार रहना पड़ता है कि किसी जनता की कोई प्रॉब्लम है, सरकार की कोई रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल किया जाए। तो इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से जब वो शुरू करता है और उसके बाद वो जो कैपिटल में, किसी भी स्टेट के कैपिटल, मान लो अगर आप मध्य प्रदेश में हो तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, तो भोपाल से, या यूपी की कैपिटल है लखनऊ, या बिहार की कैपिटल है पटना, तो वहां से पूरे की सारी कार्यक्रमों का रूपरेखा बनता है कि कैसे किसी काम को करना है, कैसे काम को चलाना है, कैसे प्रदेश की जनता का विकास करना है। तो वो सारे कार्यक्रमों की रूपरेखा किसी भी विभाग की, मान लो अगर हॉस्पिटल्स है तो पूरे स्टेट के हॉस्पिटल कैसे फंक्शन करेंगे, उसमें कितने पेशेंट आ रहे हैं, उन पेशेंटों को क्या चाहिए, किस तरह से देना है, कहीं पे अगर कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जाए, ये सारी रूपरेखा अगर वहां स्टेट ले कैपिटल में बनती है तो कैपिटल में स्टेट का हेल्थ विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग के जो सचिव होते हैं उनको हम लोग प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोलते हैं। वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक आईएएस, सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं। वो पूरे स्टेट में वो कैसे हेल्थ का सिस्टम चलेगा उसकी प्लानिंग बनाते हैं, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट कराते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर से मिलकर उसको सिस्टमेटाइज वे में काम करते हैं। तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये इतना बड़ा काम है जिसके लिए पूरा एक सिस्टम को एक नियमित रूप से, सिस्टमेटिक रूप से काम करना पड़ता है। ऐसे ही प्रत्येक स्टेट के कामों को देखने के लिए सेंट्रल में जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेड ऑफिस है दिल्ली, दिल्ली से राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जो कार्यक्रम कैसे चलेंगे, कैसे पूरे देश का विकास होगा, किस तरह से काम किया जाएगा, ये पूरा करने के लिए दिल्ली में बहुत सारे मंत्रालय हैं। हर मिनिस्ट्रीज में एक एक हमारे सचिव महोदय होते हैं जो मोस्ट सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर होते हैं। तो सेक्रेटरी महोदय के द्वारा एक एक मंत्रालय पूरे देश में उसके कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाए, कैसे चलाया जाए, राज्यों से कैसे तालमेल बनाया जाए, इसकी पूरी भूमिका बनाते हैं, पूरा एग्जीक्यूशन करते हैं, पूरा सिस्टम से काम करते हैं। तो ये पूरा जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि पूरा का पूरा स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है, तो इस तरह से आईएएस ऑफिसर्स या सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स का पूरा नेटवर्क पूरे देश के हर चीज को संभालता है। केवल एक चीज नहीं है, जनरली लोगों को, बच्चों को लगता है कि आईएएस से वो कलेक्टर बन गए। कलेक्टर तो एक इनिशियल चीज है, लेकिन वहां से लेके और पूरे दिल्ली के टॉप तक, लखनऊ और पटना और भोपाल के टॉप तक जो ये पूरा सिस्टम चलता है, वो वन बाय वन, सीढ़ी दर सीढ़ी कैसे चलेगा, और जो सरकार की योजनाएं हैं उनका बेनिफिट साधारण जन लोगों को, जनहित में लोगों को कैसे मिलेगा, बच्चों को कैसे मिलेगा, बुजुर्गों को कैसे मिलेगा, पूरे 140 करोड़ 135 करोड़ लोगों को इसका लाभ कैसे मिलेगा, इसकी पूरी जो प्रक्रिया होती है, सालों साल, डे बाय डे, राउंड द क्लॉक, उसका पूरा कार्यक्रम इन सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के द्वारा चलाया जाता है। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जब हमारा स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया जो है वो सिविल सेवक है, सिविल सेवक बढ़िया काम करेंगे, सिविल सेवक सिस्टमेटिक काम करेंगे, तो हमारे देश का विकास होगा, जनता का बढ़िया रहेगा और सारे लोग पढ़ेंगे, सारे लोग आगे बढ़ेंगे, सारे लोग अपना काम करेंगे, अपना जीवन खुशहाल बनाएंगे। तो ये पूरा का पूरा जो चक्र है, सिविल सर्विसेज डे यद्यपि केवल सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स के लिए है, लेकिन हम सबको भी प्रभावित करता है, क्योंकि पूरे देश से जितने बढ़िया ऑफिसर्स काम किए रहते हैं साल भर में, उनको इस दिन दिल्ली में बुला के उनको सम्मानित किया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके काम से हमारे देश को फायदा हुआ है, हमारा देश आपके ऊपर गर्व करता है। इससे उनको भी प्रेरणा मिलती है, उनके कार्यों को रिकॉग्निशन मिलता है, और इसके अलावा जो अन्य ऑफिसर होते हैं, अन्य लोग होते हैं, वो उस काम को और आगे बढ़ाने में अपनी उनको प्रसन्नता होती है और वो उसको उस कदम पे आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सिविल सर्विसेज डे है एवरी ईयर 20 अप्रैल, उससे न केवल सिविल सर्विसेज बल्कि पूरे देश को एक रिकॉग्निशन मिलता है। हम काम कर रहे हैं, आप बढ़िया करेंगे तो आपका रिकॉग्निशन किया जाएगा। और
इस तरह से सिविल सर्विसेज डे का 21 अप्रैल 2 दिन पहले दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बेस्ट ऑफिसर्स थे उनको सबको सम्मानित किया और इसका एक कार्यक्रम हुआ था सिविल सर्विसेज डे को। तो इसमें हमने बताया। अब आप लोगों में से किसी को अगर कोई चीज पूछना हो आप लोग क्वेरी कर सकते हैं, मैं इसको बता सकता हूं। प्लीज कुछ पूछना, कुछ बोलना, या कुछ छूट गया हो कुछ कहना। यस सर। यस सर आप कह रहे थे कि जैसे हेल्थ से रिलेटेड हॉस्पिटल्स पे या फिर जो कुछ भी है कैसे मेडिसिन देना है, क्या करना है, ये सब जो भी होते हैं जो हमारे सिविल सर्विसेज होते हैं, आईएएस आईपीएस, मतलब ये लोग नियम बनाते हैं कि ऐसे करना। तो सर जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं सर वो भी एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, तो सर उनका वर्क क्या होता है? क्या वो उनके अंडर वर्क करते हैं? जैसे जी ड्रग इंस्पेक्टर है उनके अंडर में वर्क करेंगे, या फिर जो हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो ड्रग इंस्पेक्टर उस पे वर्क करते हैं? नहीं, तो ऐसा ही है, ये सब इंटर रिलेटेड है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में जितने ऑफिसर हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, ड्रग के हैं, एजुकेशन के हैं, या अदर डिपार्टमेंट के जो भी हैं, वो सारे ऑफिसर अपना काम करते हैं। उनको कोऑर्डिनेशन का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उन सबकी मॉनिटरिंग करते हैं और कैसे वो लोग काम कर रहे, क्या करना चाहिए उस पर भी कर डिस्ट्रिक्ट और करते हैं। तो ये सारे ड्रग इंस्पेक्टर, ये सारे लोग जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी रिपोर्ट करते हैं, और जो उनका हेडक्वार्टर होता है लखनऊ में या पटना में, जो कैपिटल में जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उसको भी रिपोर्ट करते हैं। क्योंकि मिनिस्ट्री जो स्टेट कैपिटल हेडक्वार्टर होते हैं, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट है, और ये सारी प्लानिंग पे चीजें बढ़िया चल रही हैं। इसकी पूरी प्लीज क्लियर हुआ मेरी बात? यस सर। और कुछ किसी को कुछ पूछना, कुछ बताना?